बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। IBN 7 इंद्राणी के पहले पति और शीना के पिता सिद्धार्थ दास को खोज निकालने में कामयाब हुआ है। सिद्धार्थ इस समय कोलकाता में दमदम में रहते हैं। दमदम में सिद्धार्थ दास एक किराए के कमरे में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती हैं। सिद्धार्थ दास ने कहा है कि वो इंद्राणी के 3 साल लिव इन में रहे, लेकिन उन्होंने उससे शादी नहीं की। सिद्धार्थ ने यह भी दावा किया कि शीना उनकी ही बेटी है। सिद्धार्थ के मुताबिक इंद्राणी सिर्फ पैसों के बारे में सोचती थी और शीना की हत्या में शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ दास के सामने आ जाने के बाद अब मुंबई पुलिस आगे की जांच की रणनीति पर सोच विचार कर रही है। आप उनके साथ रहे हैं 3 ना साल? उनको जो पेपर में जो टीवी में दिखा है वो पैसे का लालची इतना थी। हो सकता है पैसे का लालच में कर सकती थी। ऐसा कर सकती है क्या? हमेशा से इंद्राणी ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी जब आपके साथ रहती? हाँ, उनको थोड़ा पैसा का लालच था। पैसा का लालच था। क्या यही वजह है उसने आपको छोड़ा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। क्या क्या वजह? हम 4 बजे बात करेंगे ना, आपको बोला काइंडली प्लीज। आप नहीं सुना? नो नथिंग आई वाज नॉट इन टच। क्या आपके पास पैसे कम थे इसीलिए हो सकता है इसीलिए वो चली गई? और इस बारे में सिद्धार्थ दास की पत्नी से मीडिया ने सिद्धार्थ और इंद्राणी के रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो 17-18 सालों से सिद्धार्थ के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। उन्हें बस इतना ही पता है। আমি একটা কথা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা এখান থেকে চলে যান। উনি বেরিয়ে যখন চলে গেছে উনি আপনাদের সাথে কথা বলে নেবে। একটু আগেও কথা হয়েছে একজনের সাথে। আচ্ছা আমাকে দিদি না, আমি কোনো কথা বলবো না বলে দিলাম তো। আমি কোনো কথা বলবো না। আমি জানি বিষয়ে আপনি কিছু না, আমি কিছু জানি না। আমি কোনো ব্যাপার জানি না, যতটুকু জেনেছি আমি টিভিতে জেনেছি ব্যাস। আর কোনো আমি বলছি আপনার স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, আমি বলছিলাম আমি জানি না। মানে এই ঘটনা আপনি জানতেন ওনার আগে বিয়ে? আমি কিছুই জানি না। আমি বলছি আপনি আমি জানি না। আমি কোনো কথা আর বলবো না। বিয়ের হয়নি কারণ আমি কিছু যেহেতু জানতাম না। আপনি বিয়ের ব্যাপারে জানতেন না? আমি কিছুই জানতাম না, সেজন্য আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আমার স্বামীর সঙ্গে আমি আজ 17-18 বছর ঘর করছি, বাস এইটুকুই আমি জানি। মানে বিয়ের ব্যাপারটা লুকিয়েছিলেন। और ये कहना है सिद्धार्थ की पत्नी का कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा है अपने रिश्तों के बारे में आपको एक बार फिर सुनाते हैं। लास्ट मुलाकात कब हुई थी, डिटेल में बताइए। शीना से बारे में क्या बातचीत हुई है? फोन में बात हुआ था when she was in class 10। কোন ক্লাসে পড়তেন তখন? ক্লাস 10। ইংলিশে করে নি তারপরে কি কথা হয়েছিল? না, আপনি অনেকক্ষণ করেছেন, এখন অন্যদেরকে দিন। মিস্টার দাস Mr. Siddharth, tell us, would you confirm you're the father of Yeah, of course, I'm the Sheena father of and Sheena and Mikhail? Mikhail. Please tell us about the circumstances of their birth. So, means well, I can't get you. When did you meet Indrani? I met her in 1996. And then? Then Sheena was born in 1987. Mikhail was born in 1988. And you were not married? No, I was not married. You were living together? We were living together. And then what happened? You left her, she left you? What She left me. Why? That I don't know. You can ask her. And you stayed with her family? Yeah. And then what happened? You left after a few years? Not after few years. After that time only, me also I left that place. And then what happened? You never got in touch with your children? Sir, Huh? you never got in touch with your children? I was in touch for a few days. And then? Then after that I parted away. And your children never called you or whatever? No, that's what I told. They called me on when she was in class 10. And Indrani, you never got in touch with again? No, never. Can you tell us about Indrani as you remember her? She was okay as long as she was with me. But is it true that she was very ambitious, inclined Yeah, towards money? I felt like that. What did you feel? Well, she was a bit ambitious. And? She was a high lifestyle. Okay. And? That's all. And then she never got in touch with you? No. And then, sir, you left and made your own life? Yeah, I made my own life. And when did you come to know about Sheena's death? From the newspaper, the first day when it was published, I think 25th or something, I don't remember. I know it's ridiculous asking, but you must have felt terrible. Oh, of course, I was very terrible.
So I'm speaking to you all, but I'm feeling very terrible, and I want to cooperate in every way with the police if they want me. Thank you so much. Let me speak with them in Hindi. Okay. बोलिए ना बांग्ला में बोले देखिए এখন একটু হিন্দিতে বলে দিও एक मिनट हिंदी में कर लेना हमारे साथ है सिद्धार्थ दास जो पहले बनी है शीना के पहले हमारे साथ है सिद्धार्थ दास जो पहले पिता है शीना के और पहले पति हैं इंद्राणी मुखर्जी के। क्या सवाल है, मेरा ये सवाल है आपसे कि आखिरकार क्या है पूरी बात, जरा बताते हैं। आप कब उनसे लास्ट टच में थे, क्या क्या बातें थी? We met, हम उनसे हमारा मुलाकात हुई थी 86 में, फिर 89 में पार्टेड आउट। और क्या बोले क्या कारण थे अलग हुए? क्या वो उनको पूछिए क्यों चला गया, वो हम तो चला नहीं है, वो चला। सिद्धार्थ दास जिन्होंने माना कि मिखाइल और शीना उन्हीं की संतान हैं, लेकिन मुंबई में खार पुलिस स्टेशन में लगातार तफ्तीश हो रही है इस पूरे मामले की। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हैं। विवेक, सिद्धार्थ का गायब होना ये एक बड़ी वजह थी, नार्को टेस्ट भी करवाया जाना है, अब और कौन सी वजह है? क्या कुछ और समझने की कोशिश हो रही है पुलिस की ओर से? प्रशांत, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल मुंबई पुलिस के मन में भी आ रहा है कि आखिरकार जब शीना 2012 में अचानक लापता हो गई थी तो फिर क्यों सिद्धार्थ दास ने अपनी बेटी को खोजने की जरूरत क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन्होंने इंद्राणी से पूछा, उनकी जो मिखाइल से पूछा कि उनकी बेटी आखिरकार कहाँ है, किस हालात में है? जब 3.5 साल बाद इस मामले का खुलासा हुआ और इस पूरे केस को तकरीबन अब 1 हफ्ता हो चुका है, इंद्राणी गिरफ्तार हो चुकी है, उनके पति संजीव खन्ना जो दूसरे नंबर पर पति है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है, और ये पिछले 1 हफ्ते से ये जो हेडलाइंस में है और मीडिया में काफी ज्यादा पूरा मामला चर्चे में रहा है। अब पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा है, आखिर 1 हफ्ते बाद भी सिद्धार्थ दास खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं कि क्या वजह थी? हालांकि इंद्राणी ने पुलिस के इंट्रोगेशन में बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक ही बार पुलिस को कह रही है कि उनके वकील से बात कराई जाए, अपने वकील को अपने वकील के सामने रखकर इंट्रोगेशन किया जाए, इसलिए इंद्राणी पूरे मामले में ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन अब यह नया खुलासा हुआ है कि सिद्धार्थ दास और इंद्राणी में शादी नहीं हुई थी, बल्कि वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। हालांकि इंद्राणी ने भी माना है कि मिखाइल और शीना उनके बच्चे थे, साथ ही सिद्धार्थ दास ने भी अब मान रहे हैं कि दोनों बच्चे शीना और मिखाइल उनके हैं। अब पुलिस के सामने अब पूरी थ्योरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि सिद्धार्थ दास का जल्द से जल्द स्टेटमेंट दिया जाए और पूरी सच्चाई सामने आ जा सके, क्योंकि क्यों वो इंद्राणी के अलग हुए, किस समय तक वो इंद्राणी के साथ रहे, आखिर इतने लंबे समय तक उन्होंने अपनी बेटी के बारे में जानकारी क्यों नहीं लेने की कोशिश की? प्रशांत, तो सिद्धार्थ का भी स्टेटमेंट लेने की कोशिश पुलिस करेगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही और अतीत में क्या कुछ हुआ है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है सिद्धार्थ ने अपने उन पुराने रिश्तों के बारे में। आप उनके साथ रहे हैं 3 ना साल? उनको जो पेपर में जो टीवी में दिखा है वो पैसे का लालची इतना थी, हो सकता है पैसे का लालच में कर सकती थी, ऐसा कर सकती है क्या? हमेशा से इंद्राणी ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी जब आपके साथ रहती? हाँ, उनको थोड़ा पैसा का लालच था। पैसा का लालच था, क्या यही वजह है उसने आपको छोड़ा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। क्या क्या वजह अब 4 बजे बात करेंगे ना, आपको बोला काइंडली प्लीज। आखिरी सवाल, नो नथिंग आई वाज नॉट इन टच। क्या आपके पास पैसे कम थे इसीलिए हो सकता है, इसीलिए वो चली गई? सिद्धार्थ का ये बयान। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई के खार पुलिस स्टेशन से। विवेक, रिश्ते नातों की उलझन अपनी जगह है, मकसद पुलिस का यह है कि शीना के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। कौन सी और दिक्कतें इस वक्त अभी भी बनी हुई है? देखिए प्रशांत, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस फूक कर कदम रख रही है। उनको पता है कि ये मामला काफी पुराना है, मर्डर 2012 में हुआ है और तफ्तीश इसकी 2015 में शुरू हो रही है। पुलिस को पता है कि इसमें एविडेंस खोजना बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि जब हमने इस पूरे मामले में पुलिस से बात की कि सिद्धार्थ दास मिल चुके हैं, उनकी अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, तो उससे पुलिस के आलाधिकारियों का साफ कहना है कि सिद्धार्थ दास मर्डर केस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ दास का बाकायदा स्टेटमेंट लिया जाएगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिरकार वो इंद्राणी के संपर्क में कैसे आए,
कब आए और वो कितने सालों तक लिविंग रिलेशनशिप में रहे, और जब उनके दोनों बच्चे हुए वो कहाँ हुए थे, और जब शीना और मिखाइल अचानक लापता हो गए, उनसे मिली नहीं, तो आखिर क्यों नहीं अपने उन्होंने बच्चों की जानकारी देने की इंद्राणी से कोशिश की। अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ती जा रही है। अब जो कस्टडी मिली है 5 सितंबर तक, पुलिस ये कोशिश कर रही है कि 24 अप्रैल 2012 को जब सभी आरोपी मुंबई में थे, वो उनकी लोकेशन क्या थी, कहाँ कहाँ वो लोग संपर्क में आए। इसमें मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड से 3 आरोपी वो निकाला जाए कि उन्होंने कितनी बार किससे बात की, कौन कौन से बात की। साथ ही साथ जो हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि जो मर्डर की कॉन्स्पिरेसी है वो स्काइप के द्वारा बातचीत में की गई थी। तो ये जो सबूत है पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जो अहम सबूत है गाड़ी, पुलिस दावा कर रही है कि जिस गाड़ी में मर्डर हुआ था शीना का, उनको गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कब्जे में नहीं लिया गया है। जब वो गाड़ी मिल जाएगी तो पुलिस बकायदा उसकी फॉरेंसिक से जांच भी कराएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि जब गाड़ी मिलेगी शायद उसमें से कोई सबूत तीनों आरोपियों के खिलाफ। यानी लगातार पुलिस अब उस बिंदु तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिससे वो साबित कर सके कि आखिर किस तरह से शीना की हत्या हुई है। लेकिन अतीत के पन्ने भी खंगाले जा रहे हैं कि किस तरह के रिश्तों की उलझन में ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा है। सिद्धार्थ ने क्या कुछ बयान दिया है, रिश्तों के बारे में क्या कुछ बताया, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। लास्ट मुलाकात कब हुई थी, डिटेल में बताइए। शीना से बारे में क्या बातचीत हुई है? फोन में बात हुआ था when she was in class 10। কোন ক্লাসে পড়তেন তখন? ক্লাস 10। ইংলিশে করে নি আমাদের কি কথা হয়েছিল? না আপনি অনেকক্ষণ করেছেন, এখন অন্যদেরকে দিন। মিস্টার দাস Mr. Siddharth, tell us, would you confirm you're the father of Yeah, of course, I'm the father of Sheena and Mikhail? Please tell us about the circumstances of their birth. Means well, I can't get you. When did you meet Indrani? I met her in 1986. And then? Then Sheena was born in 1987. Mikhail was born in 1988. And you were not married? No, I was not married. You were living together? We were living together. And then what happened? You left her, she left you? She left me. Why? That I don't know. You can ask her. And you stayed with her family? Yeah. And then what happened? You left after a few years? Not after a few years. After that time only, me also I left that place. And then what happened? You never got in touch with your children? Sir, Huh? you never got in touch with your children? I was in touch for a few days. And then? Then after that I parted away. And your children never called you or whatever? No, that's what I told. They called me on, when she was in class 10. And Indrani, you never got in touch with again? No, never. Can you tell us about Indrani as you remember her? She was okay as long as she was with me. But is it true that she was very ambitious, inclined towards money? Yeah, I felt like that. What did you feel? Well, she was a bit ambitious. She wanted a high lifestyle. Okay. That's all. And then she never got in touch with you? No. And then, sir, you left and made your own life? Yeah, I made my own life. And when did you come to know about Sheena's death? From the newspaper, the first day when it was published, I think 25th or something, I don't remember. I know it's ridiculous asking, but you must have felt terrible. Oh, of course, I was feeling terrible. So I'm speaking to you all, but I'm feeling very terrible. And I want to cooperate in every way with the police if they want me. Thank you so much. Let me speak with them in Hindi. Thank you. Okay. बोलिए ना बांग्ला में बोले देती এখন একটু হিন্দিতে বলে দিও एक मिनट हिंदी में कर देना। हमारे साथ है सिद्धार्थ दास जो पहले पति है शीना के, पहले हमारे साथ है सिद्धार्थ दास जो पहले पिता है शीना के और पहले पति है इंद्राणी मुखर्जी के। क्या सवाल है, मेरा ये सवाल है आपसे कि आखिरकार क्या है पूरी बात, जरा बताते हैं। आप कब उनसे लास्ट टच में थे, क्या बातें थी? We met, हम उनसे हमारा मुलाकात हुई थी 86 में, फिर 89 में पार्टेड आउट। और क्या बोले क्या कारण थे अलग हुए? क्या वो उनको पूछिए क्यों चला गया, वो हम तो चला रही है, वो चला